ارے میں تو اس کے کنڈل کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں سنو سنو کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. Seriously. Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching دل سے ریئیکٹ. گائز آج کا ویڈیو بڑا مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جس ویڈیو کے اوپر ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہے حسن مصطفیٰ بائی پیر ثاقب جی. ہم نے بہت سنا ہوا ہے کہ مطلب نبی پاک مطلب حضور پروفٹ محمد جی بہت ہی سندر تھے. مطلب ان کا حسن ایسا تھا کہ جب وہ کسی گلی سے گزرا کرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے مدہوش ہو جایا کرتے تھے. نورانی چہرہ تھا ان کا نور اتنا تھا کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے وہ. تو میں نے سنی ہوئی ہے کافی بات اپنے ویور سے ہی سنی ہوئی ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو دور سے آ رہے ہوتے تھے نا تو مطلب لوگ اپنے کام چھوڑ کے صرف ان کی طرف ہی دیکھتے تھے, مطلب کہ کون ہے یہ بندہ, کیونکہ کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو دیکھتے ہیں ویڈیو کو پیر ثاقب جی نے نبی پاک کے حسن کو اپنے شبدوں میں کیسے بیان کیا ہے. تو بنا دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. ایک روایت بیان کرتا ہوں. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے. وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا لے جائیے, خریدیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا, اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ میرا مقصد نہیں تھا, میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ نظر آیا, مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم, کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا, جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے, میرے پاس قیمت نہیں ہے. میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا جا رہے ہیں, آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ, آپ لے جائیں. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں, اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا, یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا, کہا جانے کہاں سے آیا تھا, ہم اسے نہیں جانتے. کہا اونٹ خرید کے لے گیا, قیمت دی, کہا نہیں دی. کہا کیا کیا, کہا ادھار, کہا ادھار دیا. نام جانتے ہو, نام نہیں جانتے. ایڈریس جانتے ہو, ایڈریس نہیں جانتے. پتا ہے کون ہے, نہیں پتا. کوئی ضامن نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں, کوئی چیز گروی رکھی, گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں, ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اپنا اونٹ, ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا. ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتہ پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتہ بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے. ارے میں تو اس کے کنڈل کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا, ان کے حسن میں. گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, پر سنہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی, مت چمکے لاٹ نورانی, کالی زلفت اک مستانی, مخمور عقیل مدبریا.
क्या बात बहुत बढ़िया। वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गए सूरज जाना की बू रहे। क्या बात। मेरे कफन में गए सूरज। वाह यार, इनका बोलने का अंदाज कितना बेटर है ना, जो उनकी और बिना सांस लिए बोल रहे हैं। हैट्स ऑफ। जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों सांस चढ़ गया उनको। को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। क्या ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, माशाल्लाह। अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का पटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है। मजा आ गया। वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की। अच्छा। अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है। तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। अब हमारा सौदा, अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन।
गया। बात है। हाँ वो सोना था कौन बताओ। अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो। ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त खत्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा खत्म हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई। गाइस मजा आ गया लिटरली, मतलब गूज़बम्प्स शुरू हो गए थे हमारे यहाँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों के मतलब जो इमोशन थे ना मेरे, उसको कंट्रोल करके वीडियो देखी। सही में एक एक बात का गूज़बम्प्स आ रहे थे हमें। और हेड्स ऑफ टू पीर साकिब जी, जिन्होंने इतनी शिद्दत से अपने मतलब नबी के बारे में बताया, मतलब उनके रूप के बारे और में उनके बताया। बताने का तरीका बिना सांस लिए हुजूर की, उन्होंने नूर की शान को पूरी दुनिया के सामने, वो हो मजा आ गया गाइस सीरियसली। मतलब वो थक भी गए थे लिटरली, फिर भी नहीं हटे, सांस चढ़ मतलब, गया उनको। हाँ। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोल दिया कि हुजूर की शान में अगर पूरी रात भी गुजर जाए तो वो भी कम है। मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन खत्म हो जाएगी रात पर, मतलब तारीफ नहीं खत्म होगी। इतने सुंदर थे प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब जैसे उन्होंने बताया कि जो सुरखूंट खरीदने गए, वो सैर करने गए, तो मुझे सुरखूंट चाहिए, सुरखूंट पसंद आ गया। और वो ऊंट भी कितना वो था लकी, जिसको मतलब मोहम्मद जी को पसंद आया, जिसके ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद जी की नजर पड़ गई। भाई वो लकी है, वो तर गया इस दुनिया से। तो जब उन्होंने खरीदा तो वो तो खरीद के चले गए। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, उन कबीले वालों को कि मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, उधारी करके जा रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, न नाम पूछा, न पता पूछा, न कौन है, कहाँ से है, कुछ ना ये पूछा कि इसकी कीमत तुम्हें इतनी देनी पड़ेगी, है ना। तो बाद में वो चले गए। तो फिर वो बाद में आपस में बात कर रहे हैं, कबीले के सरदार बोल रहे हैं उनको। हाँ, उन्होंने पूछा कि भाई वो सुरखूंट ले गया, इतना महंगा ऊंट, कौन था वो, पता भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा, कीमत भी नहीं बताई, कैसे ले गया। वो बोला, उसने बोला उस्ताद मैं क्या बोलता, मैं तो उनके कुंडल ही देखते रह गया, मैं उनका चेहरा ही देखता रह गया, मैं तो उनका नूरानी चेहरा देखता रह गया, मैं तो मदहोश हो गया। पता नहीं कौन था वो, जादूगर था, उसने मेरी आंखों के सामने स्पेशली उनके बालों को बोला, उनके कुंडली मतलब कर्ली हेयर्स उनके। हाँ, जिस तरीके से मतलब पीर साकिब जी ने बयान किया ना, तो इतना पता लग रहा कि क्या नजारा होगा वो उस टाइम, है ना। तो जैसे कुंडल बाल, और फिर बीच में से एक लेडी ने भी कहा कि वो तुम मतलब उन्होंने बोला, नहीं लेडी वाला बाद में आता किस्सा। तो उन्होंने बोला उनका जो उनके बाल कुंडल बाल, तो उन्होंने बोला कि कुंडल बाल। फिर उन्होंने बोला क्या ही उनकी तारीफ करूं मैं, उनके दांतों की चमक से नूर बरस रहा था, वो हंसता था तो ऐसे लग रहा था बाहर खिल गई हो। तो उन्होंने बोला कौन था वो ऐसे। तो फिर लास्ट में एक लेडी थी, उन्होंने बोला तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, उन्होंने बोला कि हम ऐसे बोल देंगे कि ऊंट गुम गया तो चोरी हो गया। उन्होंने बोला जितनी भी कीमत होगी मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो शुक्र है कोई तो जानता है। वो कहती कि मैं नहीं जानती। नहीं, उन्होंने बोला शुक्र है कोई तो है जिसने उनको देखा, कौन है वो, उसका पता भी उनको होगा, कोई जानता है इनको। हाँ, कोई जानता है। तो वो कहती ना मैं नहीं जानती, पर मैं भी तुम्हारी तरह उनके नूर को देख के पागल हो गई। उन्होंने बोला कि जब वो हंस रहे थे तो ऐसा लग रहा था कलियां खिल रही हो। तो मतलब मैंने उनका जब नूरानी चेहरा देखा तो मैं खुद मदहोश हो गई। कौन है, कौन सी दुनिया से आया है ये। उन्होंने पूछा उस लेडी से कि आप क्यों फिर ऐसे कह रही हो कि मैं दे दूंगी पैसे। तो बोलती जिसका नूर चेहरा इतना नूरानी हो, उसके पैसे क्यों ना दो, वो चोर नहीं हो सकता। हाँ, सबसे पहले ये इल्जाम लगाना बंद करो, तो वो चोर नहीं हो सकता। वो इंटरनली उन लेडीज को फीलिंग आ गई थी कि वो कोई अल्लाह का ही था बंदा। वो मतलब उतनी देर वो आपस में बात ही कर रहे थे कि मोहम्मद जी के जो
लोग थे वहां आ गए, प्रॉफिट मोहम्मद जी, हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद जी के लोग आ गए वहां हाँ। कि बताओ कितना मूल्य था, कितनी कीमत थी उस ऊंट की, हाँ। सुर्ख ऊंट की। तो उन्होंने बोला पहले हमें ये बताओ वो थे कौन। तो उन्होंने बोला कि वो मोहम्मद जी हैं जिसका चर्चा सारी दुनिया में हो रहा है, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में, वो जो मदीना में मशहूर है, हाँ, मतलब जिनके नाम पर इस्लाम चल रहा है चल वो रहा है, है वो। वो तुम है तो वो। लोग भाई खुशकिस्मत हो कि तो तुम्हारे। उन्होंने बोला कि हमें ले जाओ उनके पास, हाँ। तो वो गए, तो उन्होंने फिर पक्के मुस्लिम बन के ही वापस आए वो। पर के आए, और लिटरली ऐसा लग रहा था कि पीर साकिब जी की और बातें सुने, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर सारी रात भी लग जाए तो भी कम है वो। हुजूर की हुस्न में अगर सारा रात क्या, अगर सारा साल भी करे ना तारीफ, तब भी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो इमेजिन कर रही थी मैं उनका खुद चेहरा। लिटरली बताऊं गाइस, ये ऐसी लाइनें थी ना, जैसे जैसे वो बता रहे थे, कुंडल कुंडल बाल, दांतों की चमक, तो एक एक गूज़बम्स खड़ा हो रहा था। मतलब हमारी लाइफ का ना सबसे बेस्ट वीडियो था ये। सीरियसली। गाइस एक और चीज इन्होंने कमेंट मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एक इन्होंने ना बीच में अरबी में कुछ लाइन बोली थी, हाँ, उस आयतें बोली थी, पता नहीं हुजूर क्या थी वो, आप एक बार बताना बीच में कि क्या मतलब था उसका और क्या आयत हाँ, थी वो हुजूर की शान में कुछ अरबी में कुछ बोल रहे थे। कुछ बोला तो अगर वो कुरान की आयतें होंगी तो प्लीज हमें बताना कमेंट में उनका मतलब क्या था। तो गाइस मजा आ गया वीडियो देख के। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आप मतलब आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लिटरली यार, मतलब और भी कोई ऐसी वीडियोस होंगी तो हमें उनका लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में, हम प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब उनकी ना जितनी वीडियोस हम करते हैं ना, तो दिल में बस जाती हैं वो वीडियोस। खुश हो जाता है दिल, खुश हो जाता है दिल सीरियसली। देखो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर सच में वो आशिकी करनी है ना, तो उस अल्लाह की करो, अल्लाह के पैगंबरों की आशिकी करो। सही बात, ये होती सच्ची आशिकी जो पीर साकिब जी ने की है। मतलब कितने शिद्दत से, कितने प्यार से वो अपने हुजूर के हुस्न को मतलब बयान कर रहे थे। मजा आ गया गाइस। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।